कुछ लोगों को इंस्टीट्यूट का लाइक इम्पोर्टेंस वगैरह समझ नहीं आता है दैट दे शुड ज्वाइन और नॉट इज इट दैट इम्पोर्टेंट टू ज्वाइन वन Okay, Kashish. So, from my point of view, I should say it will help you a lot in building your career. सो मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इंटरव्यू के लिए कैसे कब रेडी हूँ Okay, so that it depends on your like inner confidence as well. Okay, so like you will get to know you are ready for your interview by yourself and also with the help of the trainer who is training you, who is assessing you regarding your improvement. Okay, now that you are in the right place, okay, for you I should say you are in a very right place. सो अभी मेरे पास कुछ डाउट्स हैं जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ आपसे बिकॉज यू आर सो एक्सपीरियंस आई वुड लव टू गेट अ चांस एंड आस्क यू सम ऑफ द क्वेश्चंस Sure, nice to meet you, Kashish. Go ahead. So one of the biggest questions I have in mind from a very long time is कुछ लोगों को इंस्टीट्यूट का लाइक इम्पोर्टेंस वगैरह समझ नहीं आता है दैट दे शुड ज्वाइन और नॉट इज इट दैट इम्पोर्टेंट टू ज्वाइन वन Okay, Kashish. So, from my point of view, I should say it will help you a lot in building your career. Even I myself, if मैं खुद की बात कह दूँ तो even I started by joining like you in one of the aviation institute and मुझे भी पता है कि aviation institute जाने के बाद मुझे क्या क्या improvement होता है and I'm giving you a live example. Okay, so जब मैंने एक 12 complete किया था उस time पे मेरा हिंदी का knowledge personality कुछ नहीं था क्योंकि like 18 years old, right? So as soon as I joined one of the aviation institute, I get to know more about the industry insights, okay? और क्या क्या ज़रूरी होता है cabin crew बनने के लिए और cabin crew बनने के लिए क्या क्या तैयारी करना पड़ता है. So I myself have already been in your place, okay? So I know कि doubts होगा बहुत अंदर कि क्या मैंने असली steps लिया कि नहीं. But I should say you are taking a very right decision, okay? जो भी आपको आपके institute में अभी लर्न करने वाले हो सीखने वाले हो ये सब बाद में आपके काम में आएगा trust me क्योंकि I myself have experienced the same as well. So you will be trained by the industry experts who have been well trained and who have been flying with lots of experience and you will get to know more about the industry insights and about the interview process क्या क्या कहता है. So I should say as a fresher if you are going for an interview आप भी सोच लो one person who knows nothing about क्या होता है aviation industry but you after getting your trainings from aviation academy now you know you are prepared you know what all क्या क्या सवाल आने वाले हैं कैसे जवाब देना है and what all question comes and then how should my personality be in front of the interviewer ये सब आप तो train होके आ रहे हो so सोच लो airline दोनों में से कौन सा चुन लेगा you think I'll leave that answer to yourself okay yes ma'am thank you so much ma'am for clearing one of my biggest doubts it's my pleasure. सो मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इंटरव्यू के लिए कैसे कब रेडी हूँ Okay, so that it depends on your like inner confidence as well. Okay, so like you will get to know you are ready for your interview by yourself and also with the help of the trainer who is training you, who is assessing you regarding your improvement. Okay, now that you are in the right place, okay, for you I should say you are in a very right place. So your trainers will be guiding you to reach to your level, to reach the level where you can clear your interview. So I should say कि आपका regular practice करना बहुत ज़रूरी होता है. एंड आई बिलीव आपकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपके ट्रेनर्स ने आपको गाइड किया जाएगा एंड दे विल बी गिविंग यू क्वेश्चनर्स ओके दैट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं इंटरव्यू में वो आपको प्रैक्टिस करके रहना है एंड जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगी आपको खुद पता चलेगा कि हाँ मुझे इतना तक तो आती है आई फील लाइक आई एम रेडी टू गो फॉर इंटरव्यू ऐसे ना लाइक अंदर से तो आता है हमेशा. तो मैं एग्जाम्पल दे दूँ तो मुझे ना आई एम अ पर्सन मैं खुद मोटिवेट करती हूँ. Okay, so one of the exercise that I used to do is most of the time if I want to practice अगर मुझे कुछ practice करना है तो मैं ऐसे करती हूँ I will stand in front of the mirror. Okay, I will stand in front of the mirror. I will look at my own reflection. Okay, and then I will try and talk to myself. Okay, talk to myself कि सवाल भी मैं पूछूंगी जवाब भी मैं दे दूंगी ऐसे ही I will pretend like you know someone is asking me a question and I would take time to practice by myself कि how do I look when I talk. Okay, and then if I smile when I say this particular words it looks more good and then how is my hand gesture going, how am I standing, and then when I talk how is my eye contact with someone who is listening to me.
सो ये सब आपको ना खुद एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको प्रैक्टिस हमें हमेशा करती थी एंड दिस आई वुड सजेस्ट यू टू डू एज वेल क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है सो इट विल हेल्प यू बिल्ड योर इनर कॉन्फिडेंस लेवल एज वेल एंड ऑल्सो कि आपको खुद का कम्युनिकेशन रिकॉर्ड करना दूसरा चीज अगर मैं बताऊं तो लाइक समटाइम्स यू कैन इफ यू हैव फ्री टाइम आपको फोन पकड़ लो नाउ इट इज everything is in your hand right आपके फोन में सब है whatever you require so take your phone and try to think like you are talking with someone जैसे मान लो कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ओके इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं एंड देन ट्राई टू एक्ट लाइक यू आर आस्किंग द क्वेश्चन एंड जवाब भी आप दे दो और रिकॉर्ड करके आपको बाद में सुन लो एंड सोच लो हाँ अगर किसी ने ये वाला सवाल सुन लिया तो क्या like उनको अच्छा होगा अच्छा फील होगा मतलब like will they want to select after hearing this kind of an answer or you can ask any of your family member your sister ho your brother ho your parents ho you can let them in here listen to it ki like can you please listen to this like recording that I have recorded for myself and give me the feedback and feedback लेना बहुत ज़रूरी है you should ask for feedback कि जैसे ही feedback like once you receive it and also always take it in a positive way अगर किसी ने आपको feedback दे रहे मान लो कि किसी ने बोला कशिश आपको तो बहुत MTI है आपको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा तो उस टाइम पे ना आपको ना पॉजिटिवली लेना है अच्छा ठीक है मेरे अंदर थोड़ा सा MTI है तो मुझे इसे ठीक करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि आपने मुझे कैसा कैसे बोल सकती है मैं इतना तैयार कर रही हूँ ऐसा वगैरह नहीं always you need to have always a positive energy in yourself and this is also one of the most important quality when you as a cabin crew need to have okay being positive okay so now you know how to check whether you are eligible whether you are ready to go for interview right so after this interview once you go back I suggest you go stand in front of a mirror talk to yourself record yourself listen to yourself send it to your friends or family and look for their feedback okay That's such a helpful technique मैम थैंक यू जैसे मैंने मेरा फर्स्ट इंटरव्यू फेल हो गया एंड आपके कहने पे मैंने दोबारा ट्राई करने का भी सोचा मोटिवेशन भी आ गई बट फिर से फेल हो गया तो मतलब कितनी बार इंटरव्यू आप दे सकते हो देखो कशिश एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि आप इतना टाइम तक दे सकते हैं क्योंकि लाइक फॉर एवरी एयरलाइन आई विल से डोमेस्टिक बी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ओके लाइक देयर इज नो सच लिमिटेशन कि एक कैंडिडेट इतना नंबर तक आप इंटरव्यू दे सकते हैं ओके लाइक जब तक आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ है तब तक यू कैन कीप ऑन गिविंग योर इंटरव्यू ओके एंड जैसे कि कुछ एयरलाइंस होता है जहाँ पे आपका कूलिंग पीरियड दिया जाता है जैसे कि मान लो आपने आज आपने इंटरव्यू दिया है ठीक है एंड आपका वही अनफॉर्चुनेटली वही इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है सो एयरलाइन आपको कूलिंग पीरियड 2 से 3 महीने ओके 2 to 3 months दिया जाता है जहाँ पे कंपनी एयरलाइंस को भी लगता है कि हाँ अगर इसको 2 या 3 मंथ देने के बाद इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा सो द कंपनी इज अलाउइंग यू टू टेक टाइम फॉर योर सेल्फ थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए इम्प्रूवमेंट दिखाने के लिए आपका ये कूलिंग पीरियड दिया गया है सो एज सुन एज यू कंप्लीट योर कूलिंग पीरियड यू कैन गो बैक एंड अप्लाई टू द सेम एयरलाइन एज वेल बट ये बहुत कम एयरलाइंस में होता है नाउ इट इज तो ऑलमोस्ट एयरलाइन इज लाइक आपका आज इंटरव्यू दे दिया कि आपने अनफॉर्चुनेटली उसको सिलेक्ट नहीं कर पाया देन एक हफ्ते बाद और अगेन तीन दिन अब अगर इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस इन यू कि हाँ आई एम रेडी है तो अगर वो इंटरव्यू दोबारा आती है 3 दिन के बाद वो भी आप जाके दे सकती हैं राइट सो देयर इज नो लिमिटेशन देयर इज नो नंबर फॉर यू कि यू नो आई हैव टू गिव सिर्फ एक ही इंटरव्यू में फेल हो गया तो मैं क्या होगा ऐसा नहीं है जितना आपको देना चाहिए जितना नंबर का एयरलाइंस जितना नंबर ऑफ इंटरव्यू आपको देना चाहिए आप दे सकते हैं दैट्स ग्रेट टू नो मैम